afternoon, my dear students. Today I am going to revise integration, and I can't say it's revision. It's some shortcuts for integration, so that you will do your 1 markers very soon. Will not kill your time. There are so many things in integration, and you see lot many formulas are there. It's not very easy to learn all that. So you need some kind of tricks to remember and to use. So see, listen here. One trick is here today. What kind of functions I am going to discuss? It is this one, 1 upon ax square plus bx plus c. See, this will be a standard form. You know this. What kind of standard form? You will convert this into perfect square, then you can use any of the formula. Standard forms you can use. But that standard form also, 3 or 4 standard forms are there. So many times you get confused, and converting it into a perfect square again challenging problem, because many times you make so many mistakes. And after that, the formula is also confusing. What to write in log, what will be in the numerator and what will be in the denominator. And after that, so many times what you do, if you are able to factorize, then you go for partial fractions, though that is also one method. But you will see this kind of questions. Dx upon x square plus 5x plus 6. This question will be in 1 marks. This is objective type question, and this thing you need in in differential equations also. In that case, you no need to go for partial fractions and any other method. Means you can straightforward write its answer while you are doing differential equations. So what I have written here, say two cases I am going to discuss. First case, d greater than equal to 0. D greater than 0, straightforward. If d is greater than 0, so you can factorize this linear polynomial into 2 factors. I don't think there is any doubt. अगर d जो है d greater than 0 होता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 2 फैक्टर्स में बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकते हैं. और d लेस देन 0 होता है, तो तब आप उसके 2 फैक्टर से नहीं कर सकते हैं. दैट यू नो वेरी वेल. उसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. अब सी लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये तो आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. देन कैलकुलेट d. d क्या होता था? b स्क्वायर माइनस 4ac. आपको आता है d. b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज b? b square is this. This is 5 square. 5 square minus 4 into 6. Answer is 1. D is 1. अब what are the factors? इसके फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर है x plus 2 into x plus 3. आप फैक्टराइज कर सकते हैं x plus 2 into x plus 3. अब देखो, अगर ये ऐसा आ जाता, यहाँ पर ये आ जाता आपके पास x plus 2 into x plus 3, डेफिनेटली आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. Look here, what I am going to tell you. This is first case. इस केस में d greater than 0 है, ये मेरा, ये greater than 0. इतना ही कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, बाकी तो ये बहुत ही जल्दी लर्न हो जाता है. 1 अपॉन रूट डी. उस फॉर्मूले में देखो 1 अपॉन रूट डी. लॉग लिखना है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3. अब ये कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. क्या करना है? x इज इक्वल टू 0 लिखो. ये 2 फैक्टर्स हैं, इसमें x इज इक्वल टू 0 लिखो. जिसकी वैल्यू कम आएगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. x इज इक्वल टू 0 अगर आप इसमें लिखेंगे तो 2 आएगा, और इस फैक्टर में लिखेंगे तो 3 आएगा. 2 इज लेस देन 3. जो छोटा है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो बड़ा है वो डिनोमिनेटर में आएगा. सो दिस इज ऑल. सी लुक हियर हाउ इजी. बहुत ही आसान हो जाता है. तो दिस इजी वे आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखो हम बिल्कुल ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देन ये हमारे पास सबसे पहले चेक करते हैं डी क्या है। लेट अस चेक डी। व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10 प्लस हो जाता है 3 इंटू 3। या 100 माइनस कितना आ गया 36। दिस इज हाउ मच 64। डी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब जब डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके फैक्टर आप कर सकते हैं, ठीक है, x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 होंगे। देखो कर लो इसको, x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। अब कम फॉर इट्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट डी, रूट 64 लॉग, मैंने कहा कौन सा ऊपर आएगा, x इज इक्वल टू 0 लिखो। छोटा कौन है? x माइनस 3 और बड़ा कौन है? 3x माइनस 1। x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1। माइनस 3 छोटा है और 1 बड़ा है, तो दिस इज द आंसर। ऑलराइट, सो हाउ इजी, ये बहुत ही आसान हो जाता है। आप किसी को भी इस तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड होना क्या चाहिए, d शुड बी ग्रेटर देन 0। So let us move for next case. Look here, I have written here some problems. The first is what? dx upon x square plus 4x plus 8. क्या करना है? d is to calculate. What is d? b square minus 4ac. This is 16 minus 32 minus 16. All right. Definitely d less than 0. d less than 0 होगा तो केस सेकंड विल बी योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो जल्दी से लिख सकते हैं आप, बहुत जल्दी लिख सकते हैं बच्चों। 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी। माइनस डी क्यों करना है? क्योंकि क्या हो जाता है उससे, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। 16 और ये tan इनवर्स f डैश x लिखा है, दिस इज f डैश x। tan इनवर्स f डैश x मीन्स 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी मीन्स 16 प्लस सी लिखोगे, थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। 2 अपॉन 4 tan इनवर्स 2x प्लस 4 अपॉन 4 है ये, प्लस सी लिखो। और भी थोड़ा बहुत आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी। इट्स ऑल। हाउ इजीली यू गॉट दिस आंसर। अदरवाइज जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में, चलो ये तो आसान है, द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक होती है हमसे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर इसको हम गलत कर देते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इस वीडियो को पॉज कर लो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। नाउ लुक एट द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। मैंने बोला पॉपुलर इन द सेंस कि इसमें हम मिस्टेक करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, इसका डी कैलकुलेट करो। व्हाट इज डी? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4, हाउ मच? माइनस 3। डेफिनेटली डी लेस देन 0। अब डी लेस देन 0 हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन रूट डी लिखा है मैंने, 2 अपॉन ये हो गया 3, ठीक है, 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स f डैश x 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। ऑलराइट, दिस विल बिकम 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स, दिस इज द आंसर। यही आंसर है, इसमें कुछ कैंसिल नहीं होता। 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज द आंसर। यही आंसर है। तो हाउ इजीली एंड क्विकली यू गॉट द आंसर। देखो 1 मार्कर जब ये आते हैं तो तब दिस विल नॉट टेक टाइम, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और वैसे भी ये 4 मार्क्स में तो आना नहीं है, ना ही ऐसा 2 मार्क्स में आना है, या आना है तो 1 ही मार्क्स में आना है। 1 मार्क्स में आना है तो
दिस मैथड इज नॉट गोइंग टू टेक योर टाइम. आपको कैलकुलेट क्या करना है, दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ डी को कैलकुलेट करना है, बाकी तो कुछ आपको करना ही नहीं है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी, इसका डी निकालो. डी कितना आया, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 10, -14 है ये, -15 आ गया. ऑलराइट, देन सीधे सीधे इंटीग्रेशन लिख दो, डायरेक्ट आंसर लिख दो. 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 15 tan इनवर्स इसका डी बाई डी एक्स, 2x - 5 upon square root of 15 plus c. So this is the answer. So children, please go through these methods and do your questions using these methods and practice a lot. Ultimately I say stay at home, be healthy and be happy. Thank you for watching.